Good morning, good morning, everybody. So, Bajay, I'm going to begin up with the class. I see most of you have joined in. So, I hope many students will join in as we start up with our class. So, Bajay, yesterday we had begun with nutrition in living organisms. तो उसके अंदर बच्चे हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था वो डिस्कस कर लिया था. We had discussed autotrophic nutrition. So, Bache, today we have to begin with heterotrophic nutrition. Okay. So, this nutrition that we see in living organisms is actually where organisms prepare their food. Sorry, organisms which depend on other organisms. They cannot prepare their own food. For example, if we talk about human beings, we are categorized as consumers. अब बच्चे हमें कंज्यूमर क्यों कहा जाता है? What is the reason we are categorized as consumers? उसके पीछे क्या रीजन है? We are not able to prepare our own food. We are dependent on plants or other organisms to obtain nutrients. So बच्चे this type of nutrition is known as heterotrophic nutrition. अब बच्चे heterotrophic nutrition is further divided. Heterotrophic nutrition is further divided into three categories. First is saprophytic, second is holozoic, third is parasitic. So these are the three major categories that we see in heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition का क्या मतलब है? यहाँ organism अपना खाना खुद नहीं बना सकता. They are dependent on other organisms. Okay? तो इसमें first है बच्चे saprophytic nutrition. अब बच्चे when you talk about saprophytic nutrition, all right? इसका क्या मतलब है? What do we understand by this type of nutrition? अगर बच्चे मैं इसे simple words में बोलूं, this nutrition is shown by decomposers. This is the type of nutrition which is shown by decomposers. Okay, decomposers such as fungi. All right, वो क्या करते हैं? They feed on dead and decaying matter. उधर वो क्या करते हैं? अपने enzymes को secrete करते हैं. All right. And they will digest them and then absorb them. So this type of nutrition is shown by decomposers such as fungi. Next is holozoic nutrition. This is what is seen in higher organisms. हमारे अंदर भी बच्चे holozoic nutrition है. इसके अंदर क्या होता है? We ingest complex nutrients. हम क्या करते हैं? Complex nutrients हैं जैसे carbohydrates, fats, proteins. इनको हम क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. And then they are broken down into simpler forms. They are broken down into simpler forms, which can then be utilized by the organism. So this nutrition is seen in all the higher organisms. सब higher organisms के अंदर ये nutrition है. All right. Third is parasitic nutrition. अब बच्चे when you talk about a parasite, parasite कौन होता है? What is a parasite? Parasite is an organism which lives inside or outside another organism and derives nutrition from it. Okay. For example, one very common plant parasite is Cuscuta. It is example of plant parasite. Okay. Then ticks हम dairy animals या cattle के ऊपर देखते हैं. Okay. So it is again a very common example of parasite. पैरासाइट क्या होता है? ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे आउटसाइड या विद इन द बॉडी इनसाइड वहां रहता है एंड इट विल डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ऑलराइट. होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है बच्चे ये सब हायर ऑर्गेनिजम्स में है, ह्यूमंस के अंदर भी है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस होलोजोइक न्यूट्रिशन इन डिटेल. Holozoic nutrition के अंदर क्या होता है? What happens in holozoic nutrition? I am just going to repeat the definition once again. What do we understand by the term holozoic nutrition? It is a type of nutrition in which complex nutrients are taken in and broken down into simpler forms. Okay, before
being used. बच्चे जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, we take in a lot of nutrients which are complex in nature. For example, carbohydrates. अब बच्चे when you talk about carbohydrates, हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. What happens? They are ingested, they are taken in, and then they are digested or broken down into simpler forms such as glucose. हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इनको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है. They are broken down into simpler forms before being utilized. और इनको किस फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सो दैट दे आर यूटिलाइज्ड. अब इस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन. ऑलराइट, सो होलोजोइक न्यूट्रिशन is something that you will see in all higher organisms, but what is interesting is it is also seen in unicellular organisms like amoeba. amoeba के अंदर भी holozoic nutrition है. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज इन कॉम्प्लेक्सिटी. अगर हम अपने अंदर कंपेयर करें बच्चे, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स या ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक पैंक्रियाज, स्टमक, सलाइवरी ग्लैंड्स एटसेट्रा. अमीबा के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, पर बच्चे बेसिक स्टेप वही है जो हमारे अंदर होते हैं. ऑलराइट, सो होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इज डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक स्टेप्स. हम इसको 5 बेसिक स्टेप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन मींस intake of food. What do we understand by the term ingestion? Ingestion means intake of food. Second is digestion. Digestion is breakdown of food into simpler forms. Okay, हम food को simpler forms में break down करेंगे in the process of digestion. Third is absorption. Once the nutrients are obtained, एक बार जब nutrient हमें मिल गए digestion के process से, they are absorbed by the organism into the bloodstream, or they are absorbed for being transported. तो इस process को हम कहते हैं absorption. Fourth step is assimilation. Fourth step is assimilation. अब बच्चे what do we understand by assimilation? Assimilation में क्या होता है बच्चे? Assimilation is the step in which objective of nutrition is actually achieved. What is the objective of nutrition? To provide us with energy, to help in growth, to repair the injured parts. तो बच्चे एसिमिलेशन के अंदर जो हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं, उनको ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यूटिलाइज करता है फॉर वेरियस पर्पसेस. लास्ट इज इजेशन. अब बच्चे वंस होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ओवर, तो बहुत सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, वो रह जाता है, उसको बॉडी से रिमूव करना होता है, तो दैट इज नोन एज इजेशन. इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट from the body. All right, so first step is ingestion, intake of food. Second step is digestion. Food is broken down into simpler components. Third is absorption. जो nutrients digestion से मिले उनको absorb किया जाता है. Fourth is assimilation. Assimilation का क्या मतलब है? Nutrients are utilized for various purposes. That is to release energy, to repair the body, to help in growth, etc. Last is egestion. Egestion का क्या मतलब है? Egestion simply means removal of undigested waste from the body. Undigested waste को क्या किया जाता है? Body से remove किया जाता है. All right. So these are the 5 basic steps that are occurring in holozoic nutrition. अब बच्चे, a very important question in board exams. Explain holozoic nutrition in amoeba. तो बच्चे, this is a simple diagram, a flow chart of diagrams which is actually showing how holozoic nutrition occurs in amoeba. तो बच्चे वही 5 बेसिक स्टेप हैं जो नीचे मैंने आपको ऊपर समझाए थे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सो बच्चे, हाउ अमीबा accomplishes holozoic nutrition. बच्चे, if you remember, अमीबा जो है, it can move with help of pseudopodia. Amoeba moves with help of pseudopodia. Pseudopodia का क्या मतलब होता है? It means false feet. False feet. These are cytoplasmic extensions which amoeba uses to move from one place to another. अब बच्चे, using these cytoplasmic extensions which are pseudopodia, amoeba क्या करेगा? It will extend its pseudopodia and engulf the food.
अमीबा क्या करेगा, ये अपना सूडोपोडिया एनगल्फ करेगा, सॉरी सूडोपोडिया एक्सटेंड करेगा और ये फूड को क्या करेगा, इट विल एनगल्फ। ऑलराइट, सो दिस प्रोसेस, ये जो पहला स्टेप है, दिस इज इंजेशन। यहां पहला स्टेप हो रहा है, अमीबा सेंसेस फूड इन इट्स एनवायरमेंट, it will extend its pseudopodia and engulf the food. Food will move in. अब बच्चे, once the food moves in, it will form a food vacuole. What is food vacuole? It is a special type of vacuole which is formed inside the amoeba. और बच्चे, food vacuole का क्या रोल है? It will help in digestion. It will help in digestion of food. All right. Inside the food vacuole, you have many enzymes. बच्चे, क्लास 9th आपने एक ऑर्गेनली पढ़ा है, lysosomes. So lysosomes, they contain powerful digestive enzymes. All right. सेल उसको क्या करता है, सेल के अंदर अगर कोई पार्ट डैमेज है उसको रिमूव करने के लिए वो यूज होता है, या सेल के अंदर कोई अगर फॉरेन मटेरियल एंटर कर गया है तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसका एक और रोल है, इट विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो लाइसोसोम विल मर्ज, लाइसोसोम विल कम एंड इट विल मर्ज विद फूड वैक्यूल, और उसके जो एंजाइम है फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम के, दे विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। सो डाइजेशन विल अकर, दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अब अच्छा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल का बना है, तो जो न्यूट्रिएंट्स फूड वैक्यूल में रिलीज होंगे, दे आर एब्जॉर्ब्ड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वहीं उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऑलराइट, दिस इज द थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एसिमिलेशन। Assimilation is going to happen, fourth step. So in fourth step, amoeba will utilize the nutrients for various activities. It will utilize the nutrients for you can say obtaining energy. It will utilize the nutrients for growth, utilize the nutrients for repair. Okay, so assimilation is the fourth step. Fifth, egestion. अब अच्छा, egestion का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, इसमें कोई elaborate organs नहीं है अमीबा के अंदर। All right, what you will observe is a simple break occurs in the plasma membrane. Okay, plasma membrane के अंदर simple सा एक छोटा सा break होगा and all the waste materials, they are removed from the cell. All right, so this process or this step, it is known as egestion. इस step को हम क्या कहते हैं? egestion. All right, तो ये आपके 5 basic step हैं: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and last step is egestion, the fifth step. All right, तो बच्चे ये series of steps हैं जो आपको देखने को मिलेंगे when you observe holozoic nutrition in amoeba. All right, I hope this is clear to everybody. Okay, तो यही 5 basic steps हैं। अब बच्चे we will proceed on to holozoic nutrition in human beings. All right, बच्चे ये स्टेप्स देखिए, यहाँ थोड़ी सी इसकी डिटेल दी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज गो थ्रू, वंस वी आर थ्रू दी क्लास आप इन नोट्स में से इसको पढ़ सकते हो, वही सिंपल चीजें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड दिस एक्सप्लेन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाँ जी अदिति, एनी डाउट? सर कल आपने बोला था कि आप ये पीडीएफ जो नोट्स की है सर, ये वाली, और जो कल आपने राइट करा था सर उसे आप भेजोगे ग्रुप में। सर कल आपने भेजा नहीं था। बच्चे आई हैव सेंट इट अक्रॉस इन द ग्रुप इन विच पार्टिसिपेंट्स आर रजिस्टर्ड। मैंने उस ग्रुप में ये नोट्स जरूर, आप रजिस्टर्ड नहीं है अभी तो बच्चे मैंने वहां जरूर शेयर कर दिया है, उसके बाद मैंने वहां जहां रजिस्टर्ड ग्रुप है वहां जरूर शेयर है। सर जो 10 स्टार साइंस वाला ग्रुप है सर वो? यस, आपने चेक नहीं किया? आपका नंबर एडेड है उस ग्रुप में? ओके, ऑलराइट। तो बच्चे दीज आर दी 5 बेसिक स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जहां आप होलोजोइक न्यूट्रिशन को देख रहे हो। अब बच्चे वी विल नाउ मूव ऑन टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। वही सेम स्टेप है सारे,
ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ऑलराइट, इट ऑल्सो शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके। पर यहां बच्चे कंप्लेक्सिटी ज्यादा होगी, उसके पीछे रीजन क्या है? ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑलराइट। तो यहां जो कंप्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। अब बच्चे होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम से अकम्प्लिश होती है। देयर आर मेनी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, ओके। वी सी आल्सो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे हमारा फूड जो है माउथ से एंटर होके आगे ट्रेवल करता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? It is actually made up of alimentary canal and digestive glands. But what is alimentary canal? Alimentary canal is route of food. It is route of food from mouth to anus. But mouth is the opening where food is ingested and anus is the opening from where undigested waste is removed. तो बच्चे वो जो पूरा पाथ है, रूट है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। And along with the alimentary canal, you have many digestive glands which are associated, like pancreas, liver, salivary glands, etc. All right. So alimentary canal के अंदर आ जाएगा mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Associated glands you will see salivary glands, gastric glands, liver, and pancreas. बच्चे ये जो glands हैं, they secrete important enzymes or chemicals which aid in digestion of food, aid in digestion of food. तो बच्चे अगर ये digestive glands नहीं होंगे, digestive process would be very slow, digestive process बहुत slow हो जाएगा, alright। तो ये जो steps हैं digestion के, उनको efficiently कौन carry out करने में help करता है? Enzymes, and enzymes are secreted by salivary glands, gastric glands, liver, and pancreas. Okay, so these are the associated glands which are helping in digestion. So how we will study holozoic nutrition in human beings? We'll start from mouth and we will proceed further. उसमें जो functions होते हैं फिर हम आगे चलेंगे. Okay, I'll just quickly show you the human digestive system. Okay, this is the human digestive system with its associated glands and root. बच्चे इसमें बहुत सारी ऐसी labelings हैं जो आपकी NCERT की बुक में नहीं दी हुई, हमें वो लेबलिंग्स याद रखनी है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में। ओके, फॉर एग्जांपल यहां आपको सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड्स दिए हुए हैं। बच्चे दीज आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ओके। देन ओरल कैविटी, माउथ इज द ओपनिंग फ्रॉम वेयर फूड एंटर्स। ओरल कैविटी माउथ का इनर पार्ट जहां फूड एंटर करता है। देन you have pharynx and esophagus. Esophagus commonly also known as food pipe. Okay, food pipe से खाना किधर जाएगा? It will move inside the stomach में digestion होगी। Then from here it will enter duodenum. Duodenum is the initial part of small intestine. Then jejunum, ileum, ये सब बच्चे किसके parts हैं? They are all parts of small intestine. Then ascending colon, descending colon, transverse colon, these are all parts of large intestine. ये सब large intestine के part हैं। लास्ट में बच्चे फूड आपका जो अनडाइजेस्टेड है वो पहुंचेगा रेक्टम, and anus is the opening from where undigested waste is removed. All right, in addition to these, what you can observe is gallbladder, liver, and pancreas. But these are also three essential glands which are associated with digestive processes. Liver बहुत important gland है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। It will secrete bile juice. Gallbladder stores the bile juice. Liver जो bile juice secrete करता है उसको कौन store करता है? Gallbladder. Pancreas, it is a very special gland. It is known as mixed gland. इसको हम कहते हैं mixed gland. Why mixed gland? Because it is producing digestive enzymes. It is producing digestive enzymes as well as hormones. तो pancreas एक बहुत special gland है, इसका hormonal function भी है, enzymatic function भी है, दोनों है।
So it is a special gland. It is known as mixed gland. Okay. All right. What is appendix? Okay. Vermiform appendix. Okay. This part. As you can clearly see, it is a very small part here. All right. But this is actually a vestigial organ. Vermiform appendix, it is a vestigial organ. Vestigial organ का क्या मतलब है? This was once functional in our ancestors, but now it is non-functional. बच्चे हेरिडिटी एवोल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स बहुत सारे हैं हमारे अंदर भी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी. व्हाट दे शो इज कि एंसेस्टर्स में तो वो फंक्शनल थे, पर अब वो फंक्शनल नहीं है. जैसे जैसे उनका यूज खत्म हो गया वो नॉन फंक्शनल हो गए. अब बच्चे आप बोलोगे इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन था हमारे एंसेस्टर्स में? बच्चे एज यू नो, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, शायद साइंस में भी पढ़ा हो. बच्चे अवर अर्लियर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दे यूज्ड टू फीड ऑन रॉ ग्रास और लीव्स. वो खाना कुक नहीं करते थे, समथिंग लाइक हर्बीवोर्स. तो बच्चे ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक न्यूट्रिएंट होता है सेलुलोज. उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है. अगर आप काओ या बफलो को देखो, उनमें एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड रूमिनेशन. दे क्विकली स्वॉलो द फूड फर्स्ट, उसके बाद वो उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ मिक्स करके वापस माउथ में लेके आते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन. एक्चुअली वो प्रोसेस क्यों हो रहा है? दैट इज फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. तो बच्चे दिस सेम रोल वाज प्लेड बाय वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन अस, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू ईट रॉ लीव्स, ग्रास, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता था. उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती थी. तो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑलराइट, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे. पर बच्चे ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड? वी शिफ्टेड टू कुकिंग फूड. हमने शिफ्ट किया खाना पकाने की तरफ. और जैसे बच्चे हमने किया टुवर्ड्स कुकिंग ऑफ फूड, व्हाट हैपेंड? हमारा जो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था उसका क्या हुआ? What happened to it? उसका यूज खत्म हो गया. तो धीरे धीरे ये श्रिंक हो गया और अब ये नॉन फंक्शनल फॉर्म में है. पर बच्चे आज कभी कभी क्या होता है, इन सर्टेन पीपल इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके रहने लग जाते हैं और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये स्वेल हो जाता है. एंड बच्चे दैट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन. और बच्चे डॉक्टर्स इसको क्या करते हैं? इसको ऑपरेशन से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज तो है नहीं. क्यों? अगर ये फट जाए तो इट कैन इवन लीड टू डेथ. ऑलराइट, उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस. उसमें ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को निकाल देते हैं. आई थिंक आपने वो सुना होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, पेन हो रहा था, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है. अब ये हमारे अंदर यूज नहीं होता. आई होप दैट इज क्लियर. ऑलराइट, ओके, चलो. सो आई विल नाउ क्विकली मूव बैक. I'll quickly move back to mouth or the buccal cavity. All right, just a moment. हाँ जी अदिति. सर आप हमारी बॉडी का कोई और वेस्टिजियल पार्ट बता सकते हो? कोई और ऑर्गन अपेंडिक्स की तरह? सर कोई और वेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी में? वेस्टिजियल ऑर्गन? यस सर. बेटा बहुत सारे हैं. आपकी जो बॉडी पे हेयर है वो वेस्टिजियल ऑर्गन रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप कभी अर्ली मैन को देखो, अर्ली मैन हैड लॉट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी. वी वर जस्ट लाइक एप्स. ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड? वी स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स. तो उन हेयर की जो यूजफुलनेस थी वो खत्म हो गई. अब हमारी बॉडी पे जो हेयर है वो बहुत डेंस नहीं है, दे आर स्पार्स. सो दे रिप्रेजेंट वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल पोर्शन है. आपकी आई में कॉर्नर में एक रेड कलर का स्पॉट है, दैट रिप्रेजेंट्स निकिटेटिंग मेम्ब्रेन. ओके, रिकिटेटिंग मेम्ब्रेन. फिर आपकी टेल बोन जो है, ऑलराइट, आपके ईयर्स के जो मसल्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स में बहुत अच्छी एबिलिटी थी, जस्ट लाइक एनिमल्स वी वर एबल टू मूव आवर ईयर्स इन ऑल डायरेक्शंस. पर ग्रेजुअली बचे वी बिकेम हंटर्स फ्रॉम बीइंग हंटेड. पहले जब हम प्रे थे तो हमें डर था, फिर बाद में हम हंटिंग करने लग गए तो हमारा यूज खत्म हो गया. अब हमें किसी से डर नहीं लगता. तो हमारे जो कान है वो जैसे डॉग्स वगैरह हिला पाते हैं, वो हमारी एबिलिटी खत्म हो गई. ऑलराइट, तो हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे और वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं. ग्रेजुअली ओके, विजडम टूथ जो लास्ट में आपके बड़े मोलर्स हैं, ये अर्लियर बहुत फंक्शनल थे. दे यूज्ड टू हेल्पिंग चूइंग ऑफ रॉ लीव्स एटसेट्रा. अब वो हमारे अंदर नॉन फंक्शनल हो गए. ठीक है,
ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आई होप दैट इज क्लियर. क्लियर? Yes, sir. Clear. Okay. Thank you, sir. Chetan is asking, sir, what will happen if there will be no gallbladder in our body? Okay. Anisha is saying, आने वाले टाइम में हमारे हेयर नहीं रहे. Anisha, see, what is going to happen in future that cannot be predicted. Yes, अगर हम evolutionary उस हिसाब से देखें, बॉडी पे हेयर जरूर है, पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा. अब बच्चे, एवोल्यूशन इज समथिंग दैट विल नॉट अकर ओवर 1 or 2 years. इट अकर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. अब इतना टाइम फ्रेम है, अब उसमें क्या होता है दैट डिपेंड्स. क्या कंडीशन होती है, क्या सिचुएशन होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, क्या पता तब तक तो ह्यूमन रेस ही ना रहे. हु नोज. तो अब आने वाला टाइम जो है वो बताएगा ये चीज. दिस इज समथिंग आई थिंक ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, कि हेयर रहेंगे कि नहीं रहेंगे. हो सकता है आने वाले टाइम में हमें हेयर्स की ज्यादा जरूरत पड़े तो वो दोबारा रीग्रो होने लग जाए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर नीड्स. ठीक है, राइट अनीशा? Alright, I'll just go back to Chetan's question. He's saying, sir, what will happen if there will be no gallbladder in our body? Chetan, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है. गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करने में हेल्प करता है, एंड बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. इट इज नॉट डाइजेस्टिंग फैट्स, इट इज हेल्पिंग इन डाइजेशन. अब अच्छा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कई बार क्या होता है, कुछ ह्यूमंस में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं, एंड दैट इज आल्सो अगेन अ पेनफुल कंडीशन. तो डॉक्टर गॉल ब्लैडर को हटा देता है, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है, इट विल सिंपली हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ बाइल. पर हाँ, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो बच्चे डॉक्टर ये एडवाइस करता है कि कम फैट वाला खाना खाया जाए, क्योंकि फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाइल उतना नहीं होगा. तो डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं डॉक्टर्स, कि आप थोड़ा कम फैट वाला खाना खाओ, क्योंकि डाइजेशन में दिक्कत होगी फिर. चेतन, इज दैट क्लियर? Okay, all right. Chalo. Let's move on. So we'll be first starting with mouth or the buccal cavity. अब अच्छा, what is the function of mouth or buccal cavity? Easy है. It helps in ingestion. Intake of food will occur from. Okay. Sir, why stone store in gallbladder? बच्चे, stone store नहीं होते gallbladder में. They are formed. They are formed inside kidneys. They can be formed inside gallbladder. ठीक है. अब स्टोन की जो फॉर्मेशन है बच्चे, ये डिपेंड करता है आपकी हेरिडिटरी कंडीशंस पे और आपकी डाइट पे. ऑलराइट, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं. स्टोन गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं होते, वहां फॉर्म हो जाते हैं. जैसे किडनी में भी स्टोन बन सकता है. ऑलराइट, यूरेटर में बन सकता है, डिपेंड्स. इंजेशन जो है, इंजेशन मींस इनटेक ऑफ फूड. इनटेक ऑफ फूड. ऑलराइट. अब अच्छा, inside the mouth there are many important organs and parts. We see presence of teeth, we see presence of tongue. अब अच्छा, what is the function of teeth? Teeth का क्या function है? They help in mastication. Mastication का क्या मतलब है? Physical grinding and chewing of food. Food का breakdown in physical form. All right. What is the function of tongue? Tongue क्या role play करता है? Tongue helps in taste. बच्चे, देयर आर 4 बेसिक टेस्ट: स्वीट, सॉल्ट, सॉर, बिटर. तो हमें खाने का टेस्ट किससे पता लगता है? टंग से. और बच्चे, टंग के अंदर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं विच आर कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स. दे आर प्रेजेंट इन आवर टेस्ट बड्स. उससे हम खाना टेस्ट कर पाते हैं. टंग का बच्चे एक और इंपॉर्टेंट रोल है. टंग हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड so that saliva can be properly mixed in it. All right. Okay, I'll just quickly go back to the blank page. All right. In mouth, what is happening inside the mouth? बहुत important functions हो रहे हैं. Okay. What are the important functions that are occurring inside the buccal cavity or the mouth? बच्चे, you have saliva. Saliva. All right. अब बच्चे, ये जो सलाइवा है माउथ के अंदर, ये क्या रोल प्ले कर रहा है? बच्चे, सलाइवा जो है, it contains very important components. It contains mucus. Saliva contains mucus. And बच्चे, what is the role of mucus? Mucus makes the food slippery. Makes the food slippery. अब बच्चे, why food is required to be made slippery? उसको slippery करने की जरूरत क्या है? So that it is easily swallowed. कि हम उसको easily swallow कर पाए. It makes swallowing easier.
अब बच्चे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी है विच इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. दिस इज द एंजाइम, दिस इज द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा. और ये बच्चे आपका पहला एंजाइम है जो खाने की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है. तो बच्चे डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगी? इट विल स्टार्ट इन दी बकल कैविटी, माउथ इटसेल्फ. डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट एंजाइम, ओके, विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा. अब बच्चे व्हाट इज इट्स रोल? ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स स्टार्च, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज. बच्चे you have to remember enzymes, their location and their function. Salivary amylase और टाइलिन, it is present in the saliva. तो ये किधर है? माउथ के अंदर है. इसका रोल क्या होता है? It converts starch into maltose. Starch is a complex carbohydrate, maltose is a simple carbohydrate. Okay, तो this digestion is starting in mouth itself. अब बच्चे इसका एक बहुत इजी सा एग्जांपल है. If you chew रोटी, अगर आप रोटी को च्यू करो काफी टाइम तक, तो च्यू रोटी फॉर सम टाइम, आप इसको च्यू करिए या ब्रेड को च्यू करिए, राइस को च्यू करिए. आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस? इट विल स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट, स्टार्ट टू टेस्ट स्वीट. अब अच्छा, ये स्वीट टेस्ट क्यों आएगा? व्हाट इज द रीजन? स्वीट टेस्ट क्यों आएगा? क्योंकि बच्चे जो आपका स्टार्च है रोटी के अंदर या राइस के अंदर या ब्रेड के अंदर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? It is going to be digested. It is going to be digested with help of salivary amylase. और जब वो salivary amylase से digest होगा, it will be converted into maltose. Okay? तो digestion will start in mouth itself. Digestion will start in mouth itself. अब अच्छे saliva का एक और बहुत important role है. Saliva का एक और बहुत important role है. It maintains pH in range of 6.8 to 7.2. इस रेंज में pH को मेंटेन करता है. What is pH? pH is a numerical value which helps us to judge whether substance is acidic, basic or neutral. तो बच्चे saliva क्या करता है? It tries to maintain pH at slightly basic level, ताकि जो आपका salivary amylase है वो सही तरीके से वर्क कर सके. Okay? In the mouth we have slight basic pH. When food will reach your stomach, stomach के अंदर HCl है तो वहां acidic pH हो जाएगा. Once your food exits the stomach, small intestine, वहां food का pH दोबारा basic हो जाएगा. तो बच्चे pH will keep on changing, and this is required. और why this requirement of changing pH? क्योंकि बच्चे enzymes को function करने के लिए specific pH की जरूरत है. जैसे हमारा जो पहला एंजाइम है salivary amylase या टाइलिन, which is present in the mouth, this requires a basic pH to function. अगर आप इसको ये basic pH नहीं दोगे तो ये function नहीं कर पाएगा. Alright, and this is provided by saliva. So it is a very important function. I'll just go back to your NCERT book. वहां बच्चे एक activity दी है. Okay. All right, I'll just quickly discuss this out with you. Very important activity. Activity 6.3. I think I told you yesterday you cannot leave any activities. सारी activities आपको इस बार पढ़नी है ढंग से. They are important for your case study. तो ये activity भी important है. This actually describes functioning of salivary amylase. What we have to do? Take 1 ml of starch solution in 2 test tube A and B. Add 1 milliliter saliva to test tube A. आपको क्या करना है बच्चे? अपने माउथ से सलाइवा कलेक्ट करके 1 ml के करीब टेस्ट ट्यूब ए में डालना है. सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब बी में नहीं डालेंगे. वेट फॉर 20 to 30 मिनट्स. उसके बाद बच्चे यू विल ऐड डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू बोथ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. बच्चे आपको क्या लगता है किस टेस्ट ट्यूब में ब्लू ब्लैक कलर आएगा? ए और बी? इन विच टेस्ट ट्यूब विल कलर चेंज? टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी. कहां कलर चेंज होगा? बच्चे कलर विल चेंज इन टेस्ट ट्यूब बी. कलर विल चेंज इन टेस्ट ट्यूब बी. क्यों कलर चेंज होगा टेस्ट ट्यूब बी में? क्योंकि बच्चे हमने क्या किया है? व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड salivary amylase in test tube A. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है.
सलाइवरी अमाइलेज हमने टेस्ट ट्यूब ए में ऐड किया है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्टार्च विल बी डाइजेस्टेड, इट विल फॉर्म माल्टोस। और बच्चे अगर स्टार्च ही खत्म हो गया तो आयोडीन टेस्ट कैसे आएगा, आयोडीन टेस्ट विल बी नेगेटिव। सो बच्चे कलर चेंज विल ओनली अकर इन बी जहां स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, सो व्हाट डज दिस शो, what it tells about action of saliva on starch? बच्चे दिस टेल्स कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, और वो एंजाइम कौन सा है, इट इज सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये ध्यान से समझनी है। हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में स्टार्च लिया था, उसके बाद सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में हमने सलाइवरी अमाइलेज डाला है, नॉट इन टेस्ट ट्यूब बी। सो इन टेस्ट ट्यूब ए when you add saliva, starch will be digested. टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें सलाइवरी अमाइलेज नहीं है। तो जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे, पहले वाले में स्टार्च खत्म हो गया तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, पर अगर आप उसे बी में डालोगे आयोडीन को, कलर विल चेंज क्योंकि वहां स्टार्च प्रेजेंट है, आयोडीन विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। सो दिस एक्टिविटी डिस्क्राइब्स फंक्शनिंग ऑफ सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब बच्चे माउथ के अंदर ये जो सलाइवा आ रहा है, ऑलराइट, माउथ के अंदर ये जो सलाइवा आ रहा है ये कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। सो बच्चे वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ, 3 पेयर्स हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ऑलराइट, we have 3 pairs of salivary glands in our mouth and they produce saliva which is secreted directly into the mouth. ये जो मैंने आपको लेबलिंग दिखाई थी, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, पैरोटिड, बच्चा ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद करना चाहते हो आप याद करो, पर बोर्ड एग्जाम में आपको इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे। You just need to remember कि we have 3 pairs of salivary glands in our mouth. अगर याद करना चाहते हो from NTSC point of view, that you can do. सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड, ये हमारे को क्या है, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है। ऑलराइट, 3 पेयर्स। टीथ का रोल हमने डिस्कस कर लिया, टीथ हेल्प्स इन फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ फूड, चूइंग ऑफ फूड। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल इज हैपनिंग, ये सब चीजें किधर हो रही हैं, माउथ या बकल कैविटी में। अब अच्छा, फ्रॉम माउथ और बकल कैविटी, ऑलराइट, ओके, देखो ये सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं, माउथ के अंदर फंक्शनिंग हो गई है। फ्रॉम माउथ your food will move into esophagus. अब अच्छा, when you talk about esophagus is food pipe. It is commonly known as food pipe or also known as gullet. आप इसे gullet भी बोल सकते हो। तो esophagus का क्या रोल है, it will simply take food from mouth to stomach. Esophagus is a pipe-like structure which will simply pass food from mouth टू स्टमक। और बच्चे इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, ये चीज याद रखनी है, हियर नो डाइजेशन अकर्स, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होगी। इट विल सिंपली पास फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। और यहां बच्चे आपको टर्म दिया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, इट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। आपकी जो ईसोफेगस है उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होते हैं ताकि वो क्या कर सकें, फूड को पुश कर सकें टुवर्ड्स द स्टमक। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, इट विल सिंपली हेल्प इन पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ओके, दैट इज द रोल ऑफ ईसोफेगस। अब चलते हैं स्टमक के ऊपर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस देखेंगे। अब अच्छा, जब हम स्टमक की बात करते हैं, ओके, स्टमक इज बैग लाइक ऑर्गन, ठीक है, ये बैग लाइक ऑर्गन है, और इसके अंदर अगर हम देखें, इट हैज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्पेशल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इट हैज स्पेशल ग्लैंड्स विच आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है स्टमक के अंदर, ये 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस सेक्रीट करते हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड इज एंजाइम पेप्सिन,
थर्ड इज म्यूकस, थर्ड इज म्यूकस। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट यू कैन से सब्सटेंसेस हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट कर रहे हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। ऑलराइट, अब बच्चे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये क्या रोल प्ले करता है? व्हाट रोल डज इट प्ले? HCl, इट विल मेक द मीडियम एसिडिक। इफ यू रिमेंबर, माउथ के अंदर जो सलाइवा था, माउथ के अंदर जो सलाइवा था वो क्या रोल प्ले कर रहा था? इट वाज मेकिंग pH ऑफ माउथ बेसिक। अब बच्चे जब फूड स्टमक के अंदर आता है तो वहां फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना होता है, एसिडिक pH में। वो रोल कौन प्ले करता है? दैट रोल इज प्लेड बाय HCl। वो रोल कौन प्ले करता है? HCl प्ले करता है। एंड बच्चे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बच्चे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक एंजाइम सेक्रीट करते हैं विच इज नोन एज पेप्सिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक एंजाइम सेक्रीट करते हैं विच इज नोन एज पेप्सिन। उसकी फंक्शनिंग के लिए एसिडिक pH की रिक्वायरमेंट है, एसिडिक pH इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, दिस इज द रीजन HCl इज प्रोड्यूस्ड। अब बच्चे HCl इसमें और भी रोल्स करता है। एक तो ये एसिडिक मीडियम बना रहा है, सेकेंडली इट ऑल्सो मेक्स फूड सॉफ्ट, it also makes food soft and kills the germs. ओके, ये इसके एसेसरी फंक्शन है, ये खाने को सॉफ्ट करता है और ये जर्म्स को भी क्या करता है? किल करता है, सो दैट फूड कैन बी डाइजेस्टेड इजिली। दिस इज द रोल ऑफ HCl। अब अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी नो इट इज अ वेरी कोरोसिव एसिड, बहुत कोरोसिव एसिड है। इट कैन कॉज सीरियस इंजरीज अगर ये स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है। तो बच्चे क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हमारे स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं, द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, हाउ विल दे बी प्रोटेक्टेड? तो बच्चे उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस। दे आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, म्यूकस। ओके, म्यूकस फॉर्म्स इनर लाइनिंग इन द स्टमक। जो बच्चे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का म्यूकस है वो स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से HCl उसको डैमेज ना कर पाए। ऑलराइट, HCl का रोल हो गया, म्यूकस का रोल हो गया। नाउ वी हैव टू डिस्कस पेप्सिन। पेप्सिन क्या रोल प्ले करता है? अब बच्चे इनसाइड द स्टमक वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ऑलराइट, उसमें सबसे पहले है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या रोल प्ले करता है? makes the food acidic, makes the food acidic नहीं, makes the pH acidic for functioning of pepsin enzyme. Okay, for functioning of pepsin, this is the enzyme that is present in stomach. Secondly, we have mucus. Mucus का क्या रोल है? It protects the stomach from injuries, all right. Third is pepsin. Pepsin क्या रोल प्ले करता है? HCl also kills germs and bacteria. It also makes food soft. All right. Pepsin, this is the important enzyme. This is the second enzyme that we are seeing in the digestive system. Pepsin, ये किस चीज में हेल्प करता है? Enzyme pepsin helps in digestion of proteins. It helps in digestion of proteins. ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बच्चे यहाँ ये याद रखना है कि ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं करेगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स की कंप्लीट डाइजेशन किधर होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। So what it is going to do? It is going to act on proteins. ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, all right, and it is going to break down proteins. They are going to be acted upon by pepsin, और incomplete digestion होगी peptones plus proteoses. आपके जो प्रोटीन्स हैं वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होंगे स्टमक में, पेप्सिन उनको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। कंप्लीट डाइजेशन किधर होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो प्रोटीन्स दे आर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन एंजाइम एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस।
Okay, so this digestion occurs inside the stomach. ये डाइजेशन कहाँ होगी? स्टमक के अंदर. ये चीज हमें याद रखनी है. Alright. अब बच्चे once food is semi digested in the stomach, वहां से हमारा फूड कहाँ पास आउट होगा? It will pass out into the small intestine. स्टमक से हमारा फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ऑलराइट. अब बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर कंप्लीट डाइजेशन अकर्स, जहां कंप्लीट डाइजेशन होती है. और बच्चे ये जो कंप्लीट डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में होती है, विच इज नोन एज डियोडेनम. डियोडेनम इज द इनिशियल पार्ट. Duodenum is the initial part where digestion occurs. बच्चे once food passes from duodenum से जब फूड आगे जाता है उसके बाद डाइजेशन ना के बराबर रह जाती है, फिर कोई डाइजेशन नहीं है. डाइजेशन को कंप्लीट कहाँ करना है हमने? डियोडेनम के अंदर, विच इज द इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके आगे अगर एक बार फूड जाएगा फिर उसमें कोई खास डाइजेशन नहीं है, सारी डाइजेशन यही कंप्लीट होनी है. उसके बाद एक और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है. दे फील कि स्टमक से फूड निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लिवर में जाएगा, फिर पैंक्रियास में जाएगा. ऐसा नहीं होता. फूड कभी भी लिवर और पैंक्रियास में नहीं जाएगा, ये चीज याद रखनी है. फूड विल रिमेन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट लिवर एंड पैंक्रियास दे विल प्रोड्यूस देयर एंजाइम्स और केमिकल्स एंड दे विल बी सेक्रेटेड इनटू द डियोडेनम. लिवर और पैंक्रियास के जो एंजाइम्स या केमिकल्स हैं वो डियोडेनम में आते हैं, ना कि फूड लिवर और पैंक्रियास में जाएगा. ये चीज याद रखिएगा, कई बार बच्चे इसको गलत लिख देते हैं. ओके, यस, पेप्टिक अल्सर डियोडेनम में होते हैं. राइट ख्याति, यू आर राइट. आई थिंक ये लास्ट ईयर व्हाई डू वी फॉल इल में आपने पढ़ा होगा पेप्टिक अल्सर्स. ओके ओके, आकृति इज सेइंग सर इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पेप्सिन एंड HCl? बच्चे इसके अंदर आप दो रिलेशंस बना सकते हो. फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स द pH फॉर पेप्सिन टू वर्क. इसको आप एक और तरीके से रिलेट कर सकते हो. एक्चुअली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो पेप्सिनोजन सेक्रीट करते हैं, इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन. दिस पेप्सिनोजन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद HCl इट इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन. तो HCl दो रोल कर सकता है. एक तो ये सही pH प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंडली ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर रहा है. पेप्सिनोजन कन्वर्टेड टू पेप्सिन. ओके, तो ये आप दो फंक्शन लिख सकते हो इसके पेप्सिन के रिलेशन में. ऑलराइट, चलो अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑलराइट, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अकम्प्लिश्ड विद हेल्प ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास. तो सबसे पहले हम लिवर डिस्कस करेंगे, लिवर एंड पैंक्रियास, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में. अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट लिवर, liver is the largest gland in the human body. It is the largest gland in the human body. Human body का सबसे बड़ा gland क्या है? Liver. All right. और बच्चे ये क्या प्रोड्यूस करता है? What does it produce? It produces bile juice. ये क्या प्रोड्यूस करता है? Bile juice प्रोड्यूस करता है. All right. And this bile juice, it is stored इन गॉल ब्लैडर. बच्चे लिवर क्या करता है? कंटिन्यूअसली बाइल जूस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता रहता है. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दिस फ्रॉम गॉल ब्लैडर, बाइल जूस इज रिलीज्ड इनटू द डियोडेनम. अब बच्चे ये बाइल जूस क्या रोल प्ले करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस क्या करता है? अब बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स की एक और मिसकंसेप्शन है. अगर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि एंजाइम के एग्जाम्पल दो, तो कई बच्चे बाइल जूस को एंजाइम के एग्जाम्पल में लिख देते हैं. बच्चे बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम, ये याद रखना है. बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम. इट इज हेल्पिंग इन डाइजेशन बट इट इज नॉट एन एंजाइम. तो इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? बच्चे बाइल जूस क्या करता है? इट मेक्स pH इन डियोडेनम. जब डियोडेनम में बच्चे खाना आएगा स्टमक से,
Once food passes from stomach into the duodenum, which is the part of small intestine, duodenum में food acidic आएगा, उसको basic करना होता है, तो bile juice ये function करता है. It makes pH in duodenum basic. Okay, duodenum के अंदर pH basic कौन करता है? Bile juice. Alright, this is the role. ये bile juice का रोल है, ये duodenum के अंदर pH को basic कर देता है. उसके अलावा ये क्या रोल करता है? It helps in emulsification of fats. It helps in emulsification of fats, a very important role. अब बच्चे, what do we understand by the term emulsification? अगर आप बच्चे कभी भी फैट या लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स देखो, फैट या लिपिड के मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखें तो दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. और बच्चे अगर उनको उसी तरीके से हम डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगी. रीजन, उनका साइज बहुत बड़ा है, दे आर वेरी लार्ज, तो एंजाइम उन पे सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते. तो व्हाट बाइल डस, बाइल के अंदर क्या होता है? दे हैव बाइल सॉल्ट्स होते हैं. ये क्या करते हैं? व्हाट दे डू इज, these bile salts they will help in emulsification में क्या होता है? fats are converted into small globules or micelles, ताकि उनकी जो डाइजेशन है वो फास्ट हो जाए. ओके, ताकि उनकी डाइजेशन क्या हो जाए? फास्ट हो जाए. अतिया, where does complete digestion of, बच्चे डाइजेशन ऑफ फैट्स अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होगी. और यू कैन सेफली से इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम. वंस द फूड पासेस थ्रू, उसके बाद फैट की डाइजेशन नहीं होगी. ओके, सारी डाइजेशन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट करनी है. सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इसके अंदर क्या होगा? फैट्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज macromolecules. Macro means large. Okay, अब बच्चे उनकी डाइजेशन को अगर हमें फास्ट करना है, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है. ओके, सो बाइल क्या करेगा? बाइल कन्वर्ट्स these large molecules into smaller globules or micelles. तो इसकी वजह से क्या होगा? आपके जो एंजाइम है वो फैट पे सही तरीके से वर्क कर पाएंगे. ओके, एंजाइम्स ये आप लिख लो. दिस हेल्प्स इन quick digestion of fats by enzymes. Okay, तो बच्चे emulsification से क्या होगा? What happens in emulsification? Emulsification से what is happening? आपके जो फैट्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ताकि उनकी एंजाइम की वजह से सही क्या हो सके? एंजाइम्स उनकी सही तरीके से क्या कर सके? डाइजेशन कर सके. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू बाइल जूस. ऑलराइट, और एक तरीके से ये लिवर का भी फंक्शन है. आपको याद रखना है, बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम. इट इज नॉट एन एंजाइम. ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं. इट इज नॉट एन एंजाइम. इट इज हेल्पिंग इन डाइजेशन बट इट इज नॉट एन एंजाइम. ये चीज आपको याद रखनी है. ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर दिस केयरफुली. चलो ठीक है, अब बच्चे बात करेंगे नेक्स्ट पैंक्रियास क्या रोल प्ले करता है. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट पैंक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड. इट हैज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन. तो बच्चे जो इसका हार्मोन वाला फंक्शन है हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे. यहाँ हमारा मेजर जो ऑब्जेक्टिव है कि इसके कौन से एंजाइम्स हैं. ओके, तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? एक्सोक्राइन फंक्शन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स एंजाइम्स. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स. ओके, ख्याति इज सेइंग सर व्हाई बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम. बच्चे एंजाइम क्या होता है? ख्याति, हमें ये समझना है कि एंजाइम क्या है. एंजाइम इज समथिंग व्हिच विल केमिकली ब्रेक डाउन अ सब्सटेंस.
बाइल जूस इज नॉट ब्रेकिंग फैट मॉलिक्यूल्स केमिकली, वो उनके फिजिकल फॉर्म को चेंज कर रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल से उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए हम बाइल जूस को एंजाइम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसने कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं की है, सिर्फ उनको फिजिकली चेंज किया है। ख्याति, इज दैट क्लियर? ऑलराइट, इट इज सिंपली कन्वर्टिंग देम फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ये बच्चे आप घर पे भी करके देख सकते हो, एक ग्लास पानी में ना 2-3 चम्मच ऑयल डालो और उसके बाद उसको जोर से स्टर करो चम्मच से, तो आप देखोगे छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं पानी के अंदर। Simran is asking, sir, HCl present in stomach same as one used in laboratories? Obviously, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम ही है, जो स्टमक में है और जो लैब में है वो सेम कॉम्पोजिशन वही है। HCl is HCl, that is not going to change. लैब हो चाहे स्टमक हो, HCl सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है सिमरन, दैट इज सेम, कॉम्पोजिशन सेम है। ओके, अब बच्चे पैंक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? बच्चे हम यहाँ 3 एंजाइम सीखेंगे। 3 एंजाइम ये सेक्रीट करता है मेनली। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन। बच्चे ट्रिप्सिन का क्या रोल है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्टमक में जो बच्चे पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस बने थे स्टमक में, डियोडेनम के अंदर ट्रिप्सिन क्या करेगा? इनको डाइजेस्ट करेगा, कंप्लीट डाइजेशन होगी, it will form amino acids, it will form amino acids बनेंगे। उसके बाद बचे एक और एंजाइम ये सेक्रीट करता है, लाइपेज। लाइपेज इज गोइंग टू एक्ट ऑन इमल्सिफाइड फैट्स, इस पे लाइपेज वर्क करेगा। ओके, इमल्सिफाइड फैट्स, इस पे बचे लाइपेज वर्क करेगा, and it will convert it into fatty acids plus glycerol. बच्चा, this is again a very important question कि जब फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। व्हेन प्रोटीन्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड, व्हाट फॉर्म, किस फॉर्म में वो बनते हैं? अमाइनो एसिड्स। ओके, ये याद रखना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। Proteins are digested to form amino acids, fats are digested to form fatty acids and glycerol. उसके बाद है बच्चे थर्ड, अमाइलेज। बच्चे अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, एंड इट विल फॉर्म ग्लूकोज। दिस इज रोल कैरिड आउट बाय अमाइलेज। तो आप कह सकते हो ये 3 मेजर एंजाइम्स हैं। These are the 3 major enzymes of pancreas which are helping in digestion of nutrients in the small intestine. Okay, ये सारी digestion किधर हो रही है? Small intestine के duodenum part में. It is occurring in the duodenum part. All right. Okay, तो ये बचे सारे roles यहाँ described हैं. We'll be quickly moving on. आगे चलेंगे। अब देखो, very important. No digestion takes place in jejunum. जेजुनम एंड इलियम, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं है। ओके, सारी जो डाइजेशन है किधर कंप्लीट करनी है आपको? ऑल डाइजेशन हैज टू बी कन्वर्टेड इन दी डियोडेनम पार्ट। वंस द फूड रीचेस जेजुनम और इलियम, वहां कोई डाइजेशन नहीं है, वहां सिंपली क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन इज कंप्लीटेड, so further down the small intestine there would be absorption of nutrients. All right, okay, I'll just move back to your NCERT book. All right, let's see what they have given here. Okay, इन्होंने भी कुछ नहीं दिया। All right, बच्चे, inside the small intestine, okay, I'll just quickly go back to my notes only. Inside the small intestine, जो हमारा थर्ड, Amanat is saying, sir, what are exocrine function? What is exocrine function? Okay, बच्चे, exocrine function क्या है? ये एंजाइम की secretion of enzymes. This is exocrine function. बच्चे, exocrine का क्या मतलब होता है? Okay, I'll explain this term to you. I think आपको इसमें confusion हो रही है. What is exocrine? Exocrine का क्या मतलब है? Chemicals are secreted and transported through a duct.
थ्रू डक्ट्स। इसको कहते हैं हम एक्सोक्राइन फंक्शन। बच्चे कैसे सिंपली समझाऊं? ओके बच्चे, क्लास 8 में आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े होंगे, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपने उसमें ध्यान से पढ़ा हो, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या मतलब है? वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ब्लड के अंदर डालते हैं, और ब्लड के थ्रू वो क्या होते हैं? फर्दर ट्रांसपोर्ट होते हैं। पर बच्चे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे विल प्रोड्यूस केमिकल्स व्हिच आर नॉट डायरेक्टली पुट इनटू ब्लड। क्योंकि सोचो, अगर हम एंजाइम को ब्लड के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा? आपका ब्लड ही डाइजेस्ट हो जाएगा। हम ये थोड़ी करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो वहां जाके वर्क करें जहां उनकी रिक्वायरमेंट है। तो डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। डक्ट्स का मतलब है बच्चे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर डक्ट्स? डक्ट्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वेसल्स, जो पर्टिकुलर ऑर्गन से उस केमिकल को उस जगह पे लेके जाएंगे जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कभी भी अपने केमिकल्स ब्लड के अंदर नहीं डालता। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास तो डक्ट ही नहीं होते, दे विल डायरेक्टली पुट देयर हार्मोन्स इनटू ब्लड। पैंक्रियाज इज मिक्स्ड ग्लैंड, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। तो अपने ये हार्मोन्स ब्लड में डालता है, पर अपने एंजाइम ये क्या करता है? इसके पास एक स्पेशल पाइप होती है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, उसके थ्रू ये क्या करता है? अपने एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। आई थिंक ख्याति एंड अमानत, आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स। आई हैव गॉट अ थम्स अप फ्रॉम अमानत। ख्याति, योर डाउट इज क्लियर्ड? व्हाट आर डक्ट्स? डक्ट्स आर वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ऑल राइट, चलो गुड, चलते हैं आगे। ओके, सो बच्चे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन वंस डाइजेशन इज कंप्लीटेड, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। बच्चे जस्ट स्टे विद मी फॉर अबाउट 5 मिनट्स एंड विल बी थ्रू। हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन खत्म होने वाला है। एब्जॉर्प्शन बच्चे, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड विद हेल्प ऑफ विलाई, आर एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई। ऑलराइट, अब बच्चे आपने विलाई के बारे में लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, लाइक these are finger like projections which are present in the wall of small intestines। और बच्चे इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एंड बच्चे these finger like projections, why are they present? ये क्यों प्रेजेंट होती हैं? they increase the surface area, they increase surface area for absorption। तो बच्चे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलाई का क्या रोल है या विलाई का स्ट्रक्चर क्या है, तो विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज देयर रोल? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, इससे इनका सरफेस एरिया भी बढ़ता है। ऑलराइट, अब बच्चे न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होंगे, राइट, दे आल्सो हैव माइक्रोविलाई, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो दीज हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अब बच्चे ये जो ब्लड की सप्लाई है इसके अंदर, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड कैपिलरीज? ये ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही हैं? जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे थ्रू ब्लड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, nutrients are transported। okay, so this is the third step in holozoic nutrition, where nutrients are absorbed by villi which are finger like projections. They will increase the surface area. Inside the villi you have blood capillaries. Through blood these nutrients are transported to all parts of the body। all right, उसके बाद आते हैं बच्चे fourth step पे, assimilation। I am not going to repeat its definition once again। assimilation में क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं उनको यूज किया जाता है। सो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर वेरियस पर्पसेस। ओके, ये प्रोसेस हो गया। लास्ट स्टेप इज इजेशन। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप, इजेशन। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट इजेशन, दिस रोल is carried out at the end of large intestine। okay, large intestine के अंदर क्या होगा? there is no digestion, ये चीज हमें याद रखनी है। no digestion, no absorption, यहां nutrients भी absorb नहीं होंगे,
नो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बस यहाँ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि क्या किया जा रहा है कि कुछ वाटर और सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नो डाइजेशन, नो एब्जॉर्प्शन, बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है, क्या करने की कोशिश हो रही है? व्हाट इज हैपनिंग? द ऑब्जेक्टिव इज टू एब्जॉर्ब, द ऑब्जेक्टिव इज टू एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब किया जाए और कुछ सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्ब किया जाए। ओके, सो दैट द अनडाइजेस्टेड वेस्ट विच इज एक्सपेल्ड आउट, उसमें पानी को कंजर्व करा जा सके। ऑलराइट, फ्रॉम हियर द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इट विल गो टू रेक्टम। बच्चे रेक्टम के अंदर टेम्पररी स्टोरेज है फीसिस की, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसिस अकर्स इनसाइड द रेक्टम। ऑलराइट, and from rectum there is a small opening which is called anus, from where feces are removed from the body. That process is called egestion. That process is called egestion. Egestion is removal of feces. Egestion is removal of feces from the body. Okay, what is loose motion? बच्चे loose motion is due to bacterial infections. तो वहां आपका जो water है वो reabsorb नहीं हो रहा है। बैक्टीरियल इंफेक्शंस की वजह से लूज मोशंस होते हैं, तो वहां आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। तो दैट इज द रीजन वी सी लूज मोशंस। ओके, आई विल जस्ट ऐड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, यहां मैं लिख देता हूं, इजेक्शन इज रिमूवल ऑफ फीसिस, रिमूवल ऑफ फीसिस फ्रॉम एनस। ऑलराइट, अब बच्चे एट द ओपनिंग, at the opening of anus there is a guard muscle which is called anal sphincter. Okay, anal sphincter regulates opening or closing of anus. Okay, anal sphincter is a muscle which will regulate opening and closing of anal opening during ejection. अब बच्चे सिमिलरली हमारे जो स्टमक है बच्चे, there is one sphincter muscle present which is called cardiac sphincter. बच्चे, I'll just take 2 more minutes. Anureet, if you want to leave you can leave. I'll just take 2 or 3 minutes more. Anal sphincter, sorry, not anal sphincter, sorry, cardiac sphincter. What is cardiac sphincter? बच्चे, this is present at the junction, this is present at junction of, ये कहां प्रेजेंट होता है? जंक्शन ऑफ ईसोफेगस विद स्टमक। ये स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन पे है। बच्चे, इसका क्या रोल है? इट विल रेगुलेट वन वे फ्लो ऑफ फूड। ईसोफेगस से फूड जब स्टमक में एंटर कर जाएगा उसके बाद बच्चे वापस नहीं आ सकता। दिस इज अ रोल विच इज प्लेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर। सिमिलरली वी हैव पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसका क्या रोल है? दिस इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ, this is present at junction of stomach with duodenum. ये बच्चे stomach with duodenum के junction पे present है। All right, so once food passes from stomach into duodenum, उसको वापस नहीं आने देगा। तो बच्चे, anal sphincter present at anal opening, it regulates egestion. Cardiac sphincter, it is present at junction of esophagus with stomach. तो वन वे फ्लो फूड में हेल्प करता है। ये फूड जो ईसोफेगस से स्टमक में आएगा वो वापस नहीं जा सकता। सिमिलर विद पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टमक और ड्यूोडेनम के जंक्शन पे है, जो फूड ड्यूोडेनम में आ गया वो वापस नहीं जा सकता। तो दीज आर एसेंशियल स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट, एनल, कार्डियक एंड पाइलोरिक। ओके, सो बच्चे, दिस एंड्स होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, यहां हमने आज बच्चे सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने क्या किया है, पिकअप किया है। बच्चे, tomorrow evening when we have our next class, we'll be picking up respiration in human beings. All right,
So I'll be ending my session here.